দৰ্শকক স্বাগতম জনাই অৰুণোদয় অসমৰ ষ্টুডিঅ'ত মই অপৰ্ণা। বাক্সাৰ খামাৰদৈচাত SSBৰ ২৭ নং বেটেলিয়নৰ চিভিক একশ্যন কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্ম। চাওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। ভাৰত ভূটান সীমান্ত এলেকাৰ বাক্সা জিলাৰ কামাৰদৈচা লক্ষী বজাৰত আজি SSBৰ ২৭ নম্বৰ বেটেলিয়নৰ উদ্যোগত এক চিভিক একশ্যন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ হৈ যায়। SSBৰ ২৭ নম্বৰ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট বিষয়া অভিষেক আনন্দে উদ্বোধনী ভাষণ প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰৱ ব্ৰহ্মই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, অতি আনন্দৰ কথা এই SSBৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা ১১জন ল'ৰাই অলপতে আৰক্ষীৰ সাক্ষাৎকাৰত উত্তীৰ্ণ হৈ চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকে সামাজিক ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ বাবে আজি ছ'লাৰ লাইট বিতৰণ কৰিছে। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন খেলৰ সামগ্ৰী দিয়াৰ লগতে চিলাই মেচিন প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰ লগতে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পৰা সকলোকে বঁটা প্ৰদান কৰে। অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়ৰ পাৰিষদ মণ্টু বড়ো, বাক্সা জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বন্দিতা তালুকদাৰকে আদি কৰি SSBৰ ২৭ নম্বৰ বেটেলিয়নৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অৰুণোদয় অসম। प्रोग्राम माने जो सोशल सर्विस सोशल सेक्टर बहुत काम करे जेनेके फ्री रिक्रुटमेंट रेली करे और ट्रेनिंगो दिए किन्तु अति आनंदर विषय जे ट्रेनिंग करा এই অঞ্চলৰ 11জন ল'ৰা পুলিচত চাকৰি পাই গ'ল। ৰিচেণ্টলি অসমত যেটো পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈছে তেওঁলোকে চাকৰি পাই গ'ল। এতিয়া টেইলৰিঙৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, তেওঁলোকক মেচিন দিয়া হয়, আৰু তেনেকৈ কম্পিউটাৰ শিক্ষা ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন দিয়া হয়। তেওঁলোকে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈ পেলাই ৪৫,০০০ ৫০,০০০ বেতন লৈ পেলাই কাম কৰি আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে আজি সোলাৰ লাইট ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে, খোৱা পানী, ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, স্পৰ্টছ মেটেৰিয়েল দিছে। SSBৰ তৰফৰ পৰা এইটো সামাজিক দায়বদ্ধতা ৰক্ষা কৰি কৰা এটা কাৰ্যসূচী। ইয়াত আহিবলৈ পাই মই খুব সুখী হৈছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ অভিষেক আনন্দ আছে ইয়াত, তেওঁ মোক মাতি পেলাই এই সুযোগটো দিছে। মণ্টু বড়ো, আমাৰ BTCৰ MCLA আৰু বাক্সা জিলাৰ ADC আছে আজি, আৰু এই খামাৰদৈচা এৰিয়াৰ গাঁৱৰ মানুহ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ লগত লগ পোৱাৰ এটা সুযোগ পাইছোঁ। যোৱা বছৰো মই কৰিছিলোঁ। আৰু SSBৰ তৰফৰ পৰা যিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াত বাস কৰা মানুহবিলাকৰ যিটো পৰিয়াল, ব্যক্তিগত জীৱন আৰু অঞ্চল উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এটা অৱদান আছে, আৰু এই কামটো আমি একেলগে মিলি পেলাই কাম কৰি যাব লাগে। ये सिविक एक्शन प्रोग्राम था। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का इनिशिएटिव होता है। बॉर्डर इलाकों में या जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और जहाँ आर्म्ड फोर्सेस अपनी ड्यूटी करती है, अब जो भी बैटल फील्ड है या बॉर्डर इलाके हैं उसमें ऐसे प्रोग्राम होते हैं आर्म्ड फोर्स के द्वारा उनके इनकल्सिव डेवलपमेंट के लिए। जो बॉर्डर पॉपुलेशन है, अगर मेन लैंड में है तो वहाँ असम गवर्नमेंट है या हिमाचल है, जो भी गवर्नमेंट है वहाँ लोकल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन बॉर्डर कहीं न कहीं पिछड़ जाता है। इसके लिए MHA ये प्लान चलाती है। तो इस साल का ये प्लान जो था ये क्लोजिंग था 2022-23 का। ये सारा प्लान हमने अपने IG संजीव शर्मा के डायरेक्शन में बनाया था। हमारे DI जगदीप पाल हैं यहाँ के, और इसके लिए मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट हमने असम के सबसे लर्नेड मिनिस्टर हैं, सबसे सीनियर मोस्ट हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर UG ब्रह्मा को हमने चीफ गेस्ट बुलाया था। आज ये जो प्रोग्राम था ये 22-23 का ख़त्म हो गया। अब जो होगा वो नए साल का हम करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत हमने भूटान कुटी में इसका ओपनिंग किया था, और वहाँ भी यही सारे सामान हमने वहाँ बांटा, जैसे सोलर लाइट है और ये स्पोर्ट आइटम है, और वहाँ सिलाई मशीन का ट्रेनिंग दिया था 2 सेंटर में, एक यहाँ लक्खी बाज़ार में और वहाँ। तो इसमें हमने तकरीबन बॉर्डर के सारे गांव की महिलाओं को चुना था जिनको हमने ये ट्रेनिंग दिया, और काफ़ी सक्सेसफुल हुआ ये ट्रेनिंग। ये इन्होंने ही इसको ट्रेनिंग को पिछले साल भी इन्होंने किया था और इस साल भी इन्होंने किया। इन्हीं का बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन है ट्रेनिंग में। आपको जैसा मैं बता रहा था कि एक महिला कोविड में जिसका जॉब चला गया, उसका भाई मुझे बता रहा था वहाँ पे कि उसको 35,000 का सैलरी मिला। हैदराबाद में आज वो काम कर रही है।
तो कहीं न कहीं डेवलपमेंट में हमारे छोटे छोटे एफर्ट हो रहे हैं। आपको बताया रिक्रूटमेंट जो ट्रेनिंग चला था तो 11 बोडो युवक उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो दिस इज़ आवर अचीवमेंट, वी कैन सेलिब्रेट दिस अचीवमेंट की बाय आवर ट्रेनिंग, वी इम्पार्टिंग ट्रेनिंग 11 गाइज सेलेक्टेड। तो इसमें हमने सोलर लाइट पूरे इलाके बक्सर डिस्ट्रिक्ट में बांट रहे हैं। हम स्पोर्ट आइटम 10 स्कूल को बांटा है, अभी सिलाई मशीन किया है, और एक टॉयलेट ब्लॉक बना रहे हैं मैना पोखरी टेम्पल में। वो टेम्पल अभी लैंडस्लाइड में डिस्टर्ब हो गया है। पहले भी एक टॉयलेट बनाया था क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ ऊपर में। वहाँ हमने सीमेंट बेंच, सोलर लाइट, टॉयलेट और एक यात्रियों के लिए जो जाते हैं वो जो बाथू मंदिर और वो दुर्गा मंदिर आ रहा था वहाँ पे कि उसको 35,000 का सैलरी मिला। हैदराबाद में आज वो काम कर रही है। तो कहीं न कहीं डेवलपमेंट में हमारे छोटे छोटे एफर्ट हो रहे हैं। आपको बताया रिक्रूटमेंट जो ट्रेनिंग चला था तो 11 बोडो युवक उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो दिस इज़ आवर अचीवमेंट, वी कैन सेलिब्रेट दिस अचीवमेंट की बाय आवर ट्रेनिंग, वी इम्पार्टिंग ट्रेनिंग 11 गाइज सेलेक्टेड। तो इसमें हमने सोलर लाइट पूरे इलाके बक्सर डिस्ट्रिक्ट में बांट रहे हैं। हम स्पोर्ट आइटम 10 स्कूल को बांटा है, अभी सिलाई मशीन किया है, और एक टॉयलेट ब्लॉक बना रहे हैं मैना पोखरी टेम्पल में। वो टेम्पल अभी लैंडस्लाइड में डिस्टर्ब हो गया है। पहले भी एक टॉयलेट बनाया था क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ ऊपर में। वहाँ हमने सीमेंट बेंच, सोलर लाइट, टॉयलेट और एक यात्रियों के लिए जो जाते हैं वो जो बाथू मंदिर और वो दुर्गा मंदिर में, उनके लिए हमने कि शेल्टर बनाया है। ये भी इसी सिविक एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा है। तो टोटल इस साल का ये था। अगर मैं बताऊं कि 5 साल से हमने 3,000 लोगों का ट्रीटमेंट किया है बॉर्डर के लोगों का। और अगर हम एनिमल के में देखें तो जो भूटान कुटी हमारा वेटनरी डिस्पेंसरी है उसमें 19,800 ट्रीटमेंट किया एनिमल का। और अगर हम उसको कृत्रिम गर्भधारण सेंटर भी है उसमें 700 एनिमल का, चाहे वो गाय हो, भेड़ हो, बकरे हो, उनका भी किया। इनसे क्या हो रहा है कि जो गाय पहले इस इलाके में, बोडो इलाके में, इसमें जो 250 ग्राम पाव भर दूध देती थी, आज वो 4 लीटर दूध देती है, 5 लीटर दूध देती है। और ये जो हम पोल्ट्री और पिगरी और ये सब कई दूध वाले कर रहे हैं, हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, इनका अच्छा होता है और हम इनका दूध खरीद लेते हैं। हमारे 7 BOP में मैंने ऑर्डर दे रखा है कि सब चीज़ लोकल ख़रीदा जाएगा। हम बाहरी सामान नहीं खरीदते हैं इस बटालियन में, क्योंकि जिनको हमने ट्रेंड किया है उनको हम सहारा देने के लिए उनसे दूध खरीदते हैं, मुर्गे खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं। तो ये इनकल्सिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है जिसमें हम थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर आपको एक और बताया, जो 2 साल से हमने ड्राइविंग ट्रेनिंग दिया था, आज उसमें से 2 ट्रेंड लोग दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं। तो अचीवमेंट है कि वो ट्रेंड किया और वो गाड़ी चला रहे हैं दिल्ली में जा कर के। हमने इस साल 2 स्टडी टूर कराया और हमने हमारे स्टूडेंट आए जहाँ विधानसभा है असम का, उसके अंदर गए, स्पीकर से मिले, डिप्टी स्पीकर से मिले, उनके साथ बैठ के लंच किया, उनसे बात किया। IIT ले गए, दिल्ली ले गए, जो नेशनल पुलिस एकेडमी, जब भी आप कोई जा नहीं सकते हैं, जहाँ खाली पुलिस अफसर दुनिया के जाते हैं, वहाँ हमारे बच्चे बॉर्डर के लिए, उनके साथ बैठ के लंच किया, उनसे बात किया। IIT ले गए, दिल्ली ले गए, जो नेशनल पुलिस एकेडमी, जब भी आप कोई जा नहीं सकते हैं, जहाँ खाली पुलिस अफसर दुनिया के जाते हैं, वहाँ हमारे बच्चे बॉर्डर के बच्चे जा रहे हैं। हम क्रूज में एक्सपोजर दे रहे हैं उनको। अभी मिनिस्टर साहब ने बोला कि एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ पैसे देंगे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने स्किल दे दिया आपको, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होते हैं, स्किल दे दिया तो आप उससे अर्न करेंगे और आप पावरफुल होंगे। अगर वुमेंस को हम स्किल दे रहे हैं, मैडम ने सिलाई मशीन सिखाया सबको सिलाई में, तो वो कुछ ना कुछ अर्न करेगी घर के ये में। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिलेक्शन प्रोग्राम जो है, और हम इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। बॉर्डर गार्डिंग के अलावा हम हर एक बॉर्डरमैन को अपने साथ लेके चल रहे हैं। एक भी बॉर्डरमैन कमज़ोर रह गया तो हमारा बॉर्डर कमज़ोर हो जाएगा। हम इसी व्यू के साथ पूरे हर एक बच्चे, बड़े, महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं और मुख्य धारा में ला रहे हैं। और आपको इतने सारे रिजल्ट बताया, क्या पता कल यहाँ से कोई बहुत बड़ा और वैज्ञानिक बन जाए, कोई हिमा दास बन जाए, कोई लवलीना बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई यहाँ का जैसे DGP थे मुसाहरी साहब, कोई और भी
डीजीपी बन जाए, क्या पता एसएसबी का कोई डीजीपी बन जाए, इस यहीं के कोई लोग। तो ये एफर्ट है और ये एफर्ट रंग लाना शुरू कर दिया है। और आप लोग जो हमारी बात को पिछले बार भी जब जो हमने रिक्रूटमेंट रैली चलाया था, आपके माध्यम से सब टीवी में चला और बहुत लोग हमारे पास आए, तब तो 11 सेलेक्ट किए। तो मैं आपके लिए भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सारे मीडिया वालों को, और एसएसबी के डीजीपी के तरफ से, आईजी के तरफ से और कमांड 27 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।